Can you see the slide, everyone? Yes, ma'am. Is this visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Okay, in the slide I have given everything in details, okay? Yes, ma'am. You must go through those each and every slide, okay? But today I will start with the experiment, okay? Now before starting the experiment, this is our fourth experiment, and we are doing what experiment on C. This is our transportation engineering lab. That means we are dealing with what material, the constructions which are materials which are used in the roadway construction. So mainly there are two types of the materials that we use, okay? That is aggregate and bitumen. And the aggregate experiments we have all gone through, okay? First was the impact, then abrasion, then shape test, okay? Now, in this experiment, we will learn about the some experiment that will be conducted on the second material, okay? That is the bitumen. Now, we know that bitumen is what? As I said, aggregate, it is the strength provider, whereas bitumen is what? They will, it is a, what to say, it will hold all the aggregates together. Okay, so that's why it is called binding material. Okay, so we should consider good bitumen. Quality of the bitumen must be good. So in order to identify what type of the bitumen that we are using, it also depends on the type of the bitumen, where in which place we are using what grade of bitumen, all this is okay. So for that only we need to conduct some quality test, okay, quality check, and that among this we will show you, in the slide I will show you there are different experiments that must be conducted on the bitumen, okay. And today's topic is that first experiment is what? Penetration value test, okay. So before going into the details, let us explain what we understand by the bitumen. Here I have given in details, okay. In brief, I can say that this is what bitumen is actually, it is the byproduct of the crude petroleum, okay. Byproduct means Yes, ma'am. it is the last product, and if we, what to say, if we do fractional distillations of the crude petroleum product, then several products will be generated which are having different boiling point temperature values. That's why they will start to boil at different temperature. So the remaining, the last product, okay, which the last product which remains after the fractional distillation of the crude petroleum is this one, okay, the bitumen. So it looks like it is black in color, okay, and it has several properties also. So these are few properties that I have written here, okay. First is what? It is containing, it is Yes, comprising ma'am. of hydrocarbons, okay. It is soluble in carbon dioxide. All this you must go through this slide for MCQ purpose. In several examination they will provide you, give you some MCQs from these topics, okay. They will ask in which solution your bitumen is soluble, okay. So there will be suppose 4 options, then your correct option will be carbon disulfide, okay. And what are the other properties? That it is impermeable. Why we are using bitumen? First, it is what it is acting as adhesive property, okay, adhesive material. That means they will bind together all the aggregates, okay. So that and also it acts like a waterproof agent. That means what? If we are using what we were, this is mainly the highway materials. As we said that pavement should be free from the it should be free from water, okay, because if water enters into the pavement layer, then there will be some defects in the pavement layer. So in order to prevent that penetration of the water into the different underlying layers, we must provide the topmost layer should be what? It should be waterproof in nature, okay, so that it will prevent, there will be camber for minimum drainage. But apart from that also our top layer must be waterproof. That's why we are using bitumen in the flexible pavement, okay. And other properties are that it is insoluble in water, okay, it is impermeable to the passage of the water, okay, and it is thermoplastic. That means our bitumen generally it has different states, okay. On it remains in cooling condition, it will remain in a hardened condition, okay, and when we heat that bitumen,
when we rise the temperature of the bitumen, it will get soft. Ultimately, what we are doing, we are making asphalt. Asphalt means what? It is the mixture of bitumen, sand, and aggregates. Okay, and that we are laying over the wearing course. Okay, so Yes, ma'am. that asphalt, in order to mix everything, all these ingredient, what we have to do, we have to heat those mixture. Okay, that's why it should be that bitumen must be softened. Okay, in cooling condition, in normal temperature, it is generally in a hardened condition. Okay, so we need to soft it, so with, if we rise the temperature, then it will start to melt. So the second experiment is on that only, on that topic only, that what is the softening point. Okay, at which temperature your bitumen will change its states from solid to liquid. Okay, so these are the other advantages why we are using bitumens. Okay, there are more tolerant. Okay, they are used in relatively cold weather, also used for patching and repair works, and also for sealing cracks. Okay, this I will explain in details when we will in our transportation engineering theory. I will discuss this one in details. Okay, each and every term. For time being, you must go through this. What are the different types of the bitumen? See, bitumen, cutback bitumen, emulsifying bitumen, tar, okay, pitch, all these are different forms of the bitumen. Okay. Now see, these are the test and the corresponding code, IS code that we are using. Okay, in the IS code, they will give you everything, what to say, procedure, what are the different instrument that we are using, what are the specification of those instruments. Okay, everything will be provided in this IS code. So different experiments have different IS code. See, for penetration, we are using IS code 1203 1978. Okay, see, here I have written this consistency test. There are other consistency tests also. See, penetration, softening point, viscosity, float test, all these are the consistency. Now, what do you understand by the consistency? It is actually the resistance of a material to flow. That means how much dense is that, how much viscous or how much dense is that material. Okay, it's generally the consistency. Now, and this consistency property, it depends upon the temperature. That's why, see here, whenever we are conducting this experiment, we are maintaining some temperature, standard temperature. Okay, I will show you in details what are those standard temperature that must be maintained. Okay, so this is our penetration value test. See, first of all, you must understand what do you mean by the penetration. Okay, this why this test is conducted. Okay, what is the main aim? Main aim is to, we have to identify, or we have to classify the bitumen grade. Okay, it is not like that all type of bitumen is suitable for all type of the weather condition. No, not like that. There are many bitumens which must be used in the hot weather condition, and there are many other bitumens which are used in the cold, which are good. Okay, which are good in the cold weather condition. Now, how we will say that this bitumen is good for Rajasthan, and this bitumen is good for some northern India, okay, Kashmir and all. So how we will identify? For that, it is mainly divided into two ways. Okay, first is we can classify, or we can classify the grade of the bitumen based on the two properties. What is that? First is the penetration value, and another is your viscosity value. Okay, so penetration means what? Penetration means there will be some load that will be applied on the sample. Okay, under that load and under several conditions, under certain conditions, standard conditions. Okay, we are applying certain amount of the load for certain time, for certain duration. Okay, then what will be the penetration? We are using, see, this is the needle. Okay, and this is the load. We are imposing some load over the needle, and we are penetrating the needle into the sample, and this is the sample. Okay, under some condition. What is that condition? Temperature should be maintained at this temperature, 25 plus minus 0.1 degree centigrade. What is the amount of the load that is applied? That is 100 grams. Okay, and for how much time we have to apply that load? Okay, that is 5 seconds. That means if we applied 100 grams of load at temperature of this one on the sample for 5 seconds, then whatever penetration that we are obtaining, okay, suppose you started your experiment at 10 o'clock, okay,
and you release this load. Okay, you penetrated this load into the sample for 5 seconds. That means you stop your experiment at 10 m 5 seconds. After 5 seconds you stop your experiment. So what is the penetration during that 5-second period? Okay, that is your penetration. Okay, now see, there are two terms. Penetration value is there and another is penetration. Penetration means simply it is going inside. How much distance is gone inside? Okay, how much distance has been penetrated? Okay, that is penetration. And penetration value, what we are dealing? We are dealing with the penetration value. Now penetration value is something that we will see or that we will read in the dial gauge. Okay, there will be one dial gauge reading which will show the penetration value. Okay, so please remember, while conducting experiment, the value that you are getting in the dial gauge, I will show you what is dial gauge. Okay, that is the penetration value. And somebody asks you what is the penetration of the needle, then that is different. Okay, I will show you the relationship also in the last slide. There are two terms. First is penetration and another is penetration value. Please remember. Okay, so these are the IS code that we are using. Okay, now what is the aim? As I said, the first aim is to see the consistency. Okay, as this is the consistency, so first is that we have to determine the consistency. Okay, another is grade of bitumen. With the help of the penetration value, we can classify the different grade of the bitumen also. Okay, and another is what? To check whether our bitumen sample is hard or soft, whether it is hard type of bitumen or soft type of the bitumen. Okay, and depending on this property only, we will we will conclude that such and such type of bitumen will be used either in hot weather condition or in cold weather condition. Okay, okay, now tell me, if your penetration value is more, so that sample is hard or soft type of bitumen? If your penetration value is more, yeah, if you say if your penetration is more, then the sample that we are using, it is hard or soft? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then it is hard or soft? Hot. No, soft. Soft, right? मतलब कि देखो वो हाँ, soft soft. उसका वाला soft. soft हाँ, बोल के तो तुम कम लोड दे रहे हो, कितना ज्यादा और दूर तक वो पेनिट्रेट कर पा रहा है, हाँ, राइट? soft होगा. हाँ, soft. अब सॉफ्ट है. अब ये डिपेंड करता है कि वो सॉफ्ट टाइप का जो भी बिटुमिन हमको मिला है वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं. ओके, वो हम बाद में आएंगे. फिर भी तुम लोग सोच सकते हो कि यू कैन मतलब सोच के रखो कि सॉफ्ट टाइप ऑफ बिटुमिन हम लोग कहाँ पे दे सकते हैं, कोल्ड में या गर्म इलाका में. ओके, so what are the different apparatus? See, apparatus that is used for this experiment is standard penetrometer. Okay, other apart from this, इसके अलावा भी और भी इंस्ट्रूमेंट हमको चाहिए. ठीक है, that is what, देखो वहां पे हम लोग बोले थे we should maintain one temperature, right? So थर्मामीटर चाहिए. ओके, अब पानी मतलब जो टेम्परेचर, देखो अभी हम लोग का ट्रॉपिकल रीजन का मेनली ऑन एवरेज कैसा होता है टेम्परेचर. यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर इट वाज 25 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, अगर तुम लोग समर सीजन में ये वाला एक्सपेरिमेंट करोगे तो 25 मिलेगा तुम लोग को आंसर, तो 25 टेम्परेचर मिलेगा. एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नहीं मिलेगा. लेकिन हमको कंडक्ट करना है इसी टेम्परेचर में हमको कंडक्ट करना है. ओके, तो वो मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए तुमको चाहिए वाटर बाथ. ओके, वो हम दिखाएंगे है. तो उसके लिए हमको चाहिए वाटर बाथ. मतलब वाटर बाथ इज जनरली यूज्ड फॉर मेंटेनिंग सर्टेन टेम्परेचर, उसको कांस्टेंट टेम्परेचर रखने के लिए. ओके, तो वाटर बाथ चाहिए रहेगा. ओके, ये सब हो गया. नाउ सीधा मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड पेनिट्रोमीटर. ओके, इसके अंदर तुमको क्या क्या मिलेगा? देखो, दिस इज द डायल गॉज रीडिंग, मतलब जहां से तुम लोग को रीडिंग मिलेगा. ओके, वी आर अप्लाइंग सम लोड, राइट? हम लोग बोले थे कि एक लोड देना है, जैसे ये वाला देखो, ये लोड. एंड पेनिट्रेट करने के लिए क्या चाहिए? एक नीडल चाहिए. सो इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद इन दिस इंस्ट्रूमेंट ओनली. ओके, इसके साथ ही तुमको मिलेगा. देखो, ये दिस इज योर पेनिट्रेशन एंड ये वाला जो छोटा सा, ये है एक लोड. ओके,
अब देखो कंटेनर भी चाहिए जहां पे तुम सैंपल को कैरी करोगे, राइट, जिसके ऊपर तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, तो कंटेनर भी यहाँ पे रहेगा। ओके, अब कंटेनर, देयर में बी टू टाइप्स ऑफ द कंटेनर, ओके, जिसका डायमीटर एंड डेप्थ विल बी वेरी डिपेंडिंग अपॉन द पेनिट्रेशन वैल्यू। देखो यहाँ पे अगर किसी किसी का पेनिट्रेशन मतलब कुछ कुछ ऐसा होता है कि मतलब पेनिट्रेशन वैल्यू इट में वेरी, राइट, ग्रेड ऑफ बिटुमिन में वेरी, मतलब उसका वैल्यू भी वेरी कर सकता है, कोई कोई सॉफ्ट होता है, कोई कोई हार्ड हो सकता है, राइट। तो जिसका वैल्यू, पेनिट्रेशन वैल्यू तुम्हारा कितना है 225 अगर रहेगा, तो उस टाइप के लिए कौन सा कंटेनर यूज करना है, छोटा वाला कंटेनर जिसका ये सब है स्पेसिफिकेशन। देखो डाया है 55, इंटरनल डेप्थ इज 35, ओके, मतलब कि 10 जितना भी डेप्थ होगा उसका 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा डेप्थ देकर कंटेनर बनाया गया है, ओके। तो पेनिट्रेशन हम बोले थे कि पेनिट्रेशन इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल, और पेनिट्रेशन वैल्यू मतलब डायल गॉस रीडिंग में जो आ रहा है, ओके। सो इट इज मेनली व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस इन 10th ऑफ अ मिलीमीटर, ये याद रखना है, 10th ऑफ अ मिलीमीटर, ओके। मतलब कि तुम्हारा अगर सपोज पेनिट्रेशन यहाँ पे 4 mm है, तो पेनिट्रेशन वैल्यू कितना होगा, इट विल बी 10 टाइम्स ऑफ द पेनिट्रेशन, मतलब कि डायल गॉज में कितना आएगा तुम्हारा रीडिंग, 40 आना चाहिए, ओके। मतलब Yes, ma'am. ये जितना पेनिट्रेट होगा उसका 10 टाइम्स विल बी शोइंग इन द डायल गॉज रीडिंग, एंड डायल गॉज में जो दिखाई देता है दैट इज पेनिट्रेशन वैल्यू, ओके। कितना पेनिट्रेट हुआ वो नहीं दिखाई देता है, वो सिर्फ दिखाई देता है कितना, उसको 10 टाइम्स करके डायल गॉज में हमको दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन वैल्यू। सो पेनिट्रेशन इज 4 mm, पेनिट्रेशन वैल्यू इज 4 into 10, तो 40 mm, ओके। अब देखो ये वाला है तुम्हारा पेनिट्रेशन वैल्यू विच इज 225, मतलब डायल गॉज में तुम्हारा इतना है 225 है, तो इसका पेनिट्रेशन कितना होगा, कितना mm होगा, ऑपोजिट बोलो। हम बोले थे कि जितना पेनिट्रेट होगा उसका 10 टाइम्स डायल गॉस में शो करेगा, अब ऑपोजिट में बोलो, तुम्हारा डायल गॉस में 225 शो कर रहा है, तो पेनिट्रेशन कितना होगा, कितना होना चाहिए, डायल गॉस में सपोज 40 है तो कितना mm पेनिट्रेट हुआ, 20. 4 mm पेनिट्रेट हुआ था, मतलब उसका 1/10 पेनिट्रेट हुआ है, राइट। सो हाँ गुड, 20, ठीक है। तो सो 22.5 mm इज द पेनिट्रेशन, उतना वो नीडल नीचे जाएगा, ठीक है, 22.5 mm नीचे जाएगा, तो उससे प्लस 10 कर दो तो अप्रॉक्स 35 mm का डेप्थ हमको रखना चाहिए, ठीक है। अब सिमिलरली व्हेन ये पेनिट्रेशन वैल्यू अब उससे ज्यादा हो जाएगा तो डेप्थ को भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ा दिया देखो, और ठीक है। सो दिस आर द स्पेसिफिकेशन। अब देखो इसमें क्या क्या है, इसमें एक तुम्हारा ये है कि एज आई सेड ये पेनिट्रेशन कितना टाइम के लिए अंदर जाएगा, कितना टाइम के लिए हमको पेनिट्रेट करना पड़ेगा, कितना टाइम था, टाइम ऑफ 5 सेकेंड। अब वो कैसे करोगे, एक होता है कि तुम मैनुअली कर सकते हो और एक होता है ऑटोमेटिक, ओके। मैनुअली क्या करना है, तुमको ये वाला नॉब को प्रेस कर देना है, ठीक है, 5 सेकेंड तक प्रेस करना है, फिर आफ्टर 5 सेकेंड तुमको रिलीज करना है, स्टॉप वॉच में देखकर 5 सेकेंड हो गए, रिलीज कर दोगे तो ये लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। अब वैसा भी कर सकते हो, या तुम ये वाला ऑटोमेटिक सिस्टम भी है, फिर यहाँ पे तुम एक स्विच होगा उसको क्लिक कर दो, ये अपने आप रिलीज होएगा, रिलीज हो रहा है 5 सेकेंड तक रिलीज हो गए, आफ्टर 5 सेकेंड अपने आप ये बंद लॉक हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला है तुम्हारा टाइमिंग डिवाइस, ओके, मतलब जिससे कि ये वाला ऑटोमेटिकली ये बंद मतलब रिलीज हो और फिर से लॉक हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द सेटअप। अब आते हैं कि नीडल के ऊपर, नीडल का भी कुछ स्पेसिफिकेशन ये थोड़ा देख लेना है, ओके, कि कितना है ये सब, डायमीटर ये सब यहाँ पे है, ओके। सो दिस इज टाइम डिवाइस। अब एक्स्ट्रा एपरेटस क्या था, एपरेटस बोलते हैं वाटर बाथ, जहाँ पे हमको मेंटेन करना है टेम्परेचर कितना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज व्हाट 25 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और चाहिए थर्मोमीटर क्योंकि हम लोग टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, राइट। अब आते हैं सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन के लिए पहले क्या चाहिए, तुम अगर बिटुमिन को देखोगे इन रूम टेम्परेचर इट विल बी इन सॉलिड कंडीशन, ओके। तो उसको तो क्या करना है, वी हैव टू उसको सॉफ्ट करना है, राइट, तभी तो वो हम उसको फ्लो कर पाएंगे या दूसरे जगह पर पोर कर पाएंगे, ओके। तो इसीलिए उसको गर्म करना है। अब गर्म कितना देर तक करना है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड, उतना दूर तक तुमको वो गर्म करते रहना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो उतना टेम्परेचर तक उसको गर्म कर दिया, थोरली
मतलब हिलाते रहना, स्टर करना, जिससे कि एक होमोजेनियस मिक्सचर स्टार्ट हो जाए और जो एयर बबल्स उसमें अगर रहेगा भी तो वो उड़ जाए। ठीक है, अब देखो फिर क्या करना है हमको, जो कंटेनर है, जिस ये कंटेनर में बिटुमिन को पोर कर देना है इस वाले में। ओके, अब बिटुमिन क्या है, इट इज इन लिक्विड फॉर्म। तुम जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसको सॉलिड में हो रखना चाहिए, इट शुड बी इन सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड करने के लिए क्या चाहिए, फिर से तुम पहले पोर करने के लिए उसको गर्म कर दिया। ठीक है, अब इसको एक्सपेरिमेंट तुम वो जो भी गर्म है सैंपल उसको लेकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ भी नहीं आएगा, मतलब भूलभाल रीडिंग आएगा, राइट। तो इट शुड बी इन इट्स नेचुरल कंडीशन, मतलब कि सॉलिड स्टेट में आना चाहिए। तो सॉलिड में आने के लिए क्या करना है, उसको फिर से हमको ठंडा करना है। ओके, अब इसका दो वे है ठंडा करने का। एक है कि फर्स्ट यू शुड कूल इट इन एयर, मतलब रूम टेम्परेचर में उसको कूल करो। ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर उसको फॉर सर्टेन पीरियड, देखो ये सर्टेन पीरियड कितना है, ये वाला है, देखो 2 टाइप का कंटेनर के लिए इतना देर तक हमको कूल करना है इन एयर। ओके, आफ्टर दैट क्या करोगे, तुम उसको फिर वाटर बाथ में लेकर जाओगे, जिसका टेम्परेचर इज फिक्स्ड 25 डिग्री सेंटीग्रेड में फिक्स कर दिया है। उसमें डालोगे तुम, डाल के क्या करना है, फिर से उसको कूल कर देना है। ठीक है, अब ये 2-2 बार क्यों कूल कर रहे हैं, सो दैट उसका जितना भी अंदर क्या होता है, अगर टॉप सरफेस बिटुमिन का टॉप सरफेस में जनरली जल्दी जल्दी कूल हो जाएगा तो वो जल्दी हार्ड होगा, लेकिन अंदर गर्म ही रहता है, राइट। अब उसको अंदर से भी और अच्छी तरह से ठंडा करने के लिए हम पानी में डाल रहे हैं सेकेंड टाइम। ओके, तो फर्स्ट इज इन रूम टेम्परेचर फॉर दिस मच पीरियड। ओके, और फिर सेकेंड क्या करना है, अगेन इन वाटर बाथ कूल करना है, जिसका टेम्परेचर इतना है, और फॉर दिस मच पीरियड, मतलब 1 to 1.5 आवर्स। ठीक है, मैक्सिमम इज 2 आवर्स, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंटेनर यूज कर रहे हो। नाउ व्हाट यू विल डू, अब उसको उठा के तुम यहाँ पे लेकर आओगे, ये पेन ये मतलब हार्ड हो गया है। हार्ड होने के बाद नीडल को एडजस्ट कर दोगे। रिमेंबर व्हेनेवर यू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, ये वाला जो भी है और ये वाला का टच होना चाहिए, यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम ये वाला टच होना चाहिए, करके ऐसा इसको सेटअप कर दो। ठीक है, करने के बाद अब तुम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दो, नॉब को रिलीज कर दो, यहाँ पे वेट बिठेगा। अच्छा, द वेट एज आई सेड, ये टोटल वेट, मतलब कि ये नीडल, ये जो एक्स्ट्रा वेट हम लोग डाल रहे हैं, प्लस ये जो भी है तुम्हारा नीडल का होल्डर, टोटल वेट शुड बी 100 ग्राम, नॉट दिस वेट। ओके, जो भी हम एक्स्ट्रा वेट डाल रहे हैं सुपर इम्पोज वेट, वो सिर्फ 100 ग्राम नहीं है, टोटल जो भी इसके ऊपर लोड आएगा, टोटल वेट शुड बी 100 ग्राम। ओके, ये रिमेंबर रखना, यहाँ पे 100 ग्राम लिखा है, एक्चुअली ये इंक्लूडिंग नीडल, इंक्लूडिंग वेट, इंक्लूडिंग होल्डर, सब मिला के 100 ग्राम है। ओके, तो अब रिलीज कर दोगे। रिलीज करने के बाद देखो आफ्टर 5 सेकेंड इतना पेनिट्रेशन हुआ है। ठीक है, देखो टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, सो आफ्टर 5 सेकेंड इतना पेनिट्रेशन हुआ है। ओके, अब इनिशियली डायल गॉस रीडिंग क्या था, सपोज 0 था। अब ये जैसे नीडल नीचे नीचे जाएगा, ये वाला गैप होना स्टार्ट करेगा, तो ये पूरा नॉब नीचे आएगा। ठीक है, तो ये डायल गॉस का ये वाला एंड है और ये वाला का ये वाला एंड है, अब इन दोनों के बीच में गैप आएगा। तो फर्स्ट रीडिंग वाज 0, अब इसको तुम प्रेस कर दोगे, यू विल गेट सेकेंड रीडिंग। सपोज आफ्टर 5 सेकेंड तुम्हारा सेकेंड रीडिंग आ रहा है, यहाँ पे 40 में आ रहा है, पहले था 0 40, सो कितना पेनिट्रेशन हुआ, आई मीन कितना पेनिट्रेशन वैल्यू है 40, फाइनल रीडिंग माइनस, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल 40 है। ठीक है, सो दैट इज योर पेनिट्रेशन वैल्यू। ओके, अब देखो एक एक्सपेरिमेंट, मतलब एक सैंपल के ऊपर हम लोग 3 बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि दिस इज योर टॉप सरफेस, टॉप व्यू है, ये प्लान है। ओके, ये सैंपल है बिटुमिन, ऊपर से तुम कंटेनर को देख रहे हो। तो सपोज मैंने ये वाला पॉइंट लिया, अब सेकेंड पॉइंट कहाँ पे लोगे, इट शुड बी 1 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और पेरीफेरी से भी 1 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, ऐसा कोई एक पॉइंट लोगे। सिमिलरली थर्ड भी वही देखकर करना है, तो एक ही सैंपल से तुमको 3 रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 3 तो पेनिट्रेशन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब उसको एवरेज कर दोगे, देन दैट विल बी योर एवरेज पेनिट्रेशन वैल्यू। ओके, अब जो हम लोग डायल गॉज से निकल रहा है, जैसे 40 अगर आ रहा है, दैट इज योर पेनिट्रेशन वैल्यू। ओके, तो अगर पूछेगा देन व्हाट इज द पेनिट्रेशन, कितना होगा, मतलब कि कितना ये नीचे गया। अगर डायल गॉज रीडिंग पेनिट्रेशन वैल्यू इज 40, देन व्हाट इज द पेनिट्रेशन इन 4 4 यस 4 mm 4 mm। ओके, तो ये पेनिट्रेशन कितना हुआ 4 mm। देखो यहीं पर ये पर ऐसा करके हम लोग लिख दिए हैं।
ओके, इतना क्लियर है ना एक्सपेरिमेंट? यस मैम। ओके, अब आता है कि देखो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कुछ कुछ होता है कि तुम्हारा एक रीडिंग आ रहा है, सपोज यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग में आया 40, सेकंड में आ रहा है 45, ठीक है, फिर दूसरा आ रहा है 43, तो इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 से ज्यादा आ रहा है, राइट? सो इसीलिए तुम्हारा वो क्या करेंगे हम लोग तब, आइदर एक्सपेरिमेंट को मतलब फिर से रिपीट करेंगे या रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब रिपीट मतलब कि वही सैंपल को ही हम फिर से दोबारा बना के टेस्ट करेंगे, दैट इज रिपीटेबिलिटी। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर आ रहा है तो हम लोग पूरा जो जहां से भी तुमको वो विटामिन मिला है पूरा वो सप्लायर से पूरा बदल के दूसरा विटामिन हमको लेना है, क्योंकि दैट इज नॉट क्या बोलते हैं वो शायद उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और दूसरा है कि एक ही एक्सपेरिमेंट, एक ही सैंपल को हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में काम लगाएंगे, सो दैट इज रिपीटेबिलिटी। तो उसका भी ये रेंज देखना है कि कितना परसेंट या कितना तुम्हारा अलाउएबल है। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस 1 मतलब 40-45 ऐसा रीडिंग आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन ओके, वो हम लोग ले सकते हैं, ऑन एवरेज हम कर सकते हैं। लेकिन किसी का 40 आ रहा है, किसी का 45 आ रहा है, तो हमको फिर से रिपीट करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट, ओके। अब आते हैं कि देखो विटामिन ग्रेड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू, हो गया। कुछ कुछ प्रॉब्लम तुमको कुछ कुछ एमसीक्यूज में दिया रहता है कि दे विल प्रोवाइड यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विटामिन ग्रेड ऑफ 80/100, ठीक है, ऐसा भी रहता है। और कोई के जगह पर एज पर IS तुम्हारा 73, these are the grade of the bitumen depending upon the penetration value, okay। देखो S35, S45, S55 ऐसा किया है, ठीक है। so S35 का मतलब है कि तुम्हारा पेनिट्रेशन वैल्यू कितना में आएगा, 30 to 40 में आएगा। रिमेंबर दिस इज नॉट मिलीमीटर, ओके, तो मिलीमीटर अगर करोगे तो क्या होगा, 3 to 4 mm, ओके। 45 का है इतना में रहना चाहिए, 55 का है इतना में। तो अभी तुम लोग जब तुमको सप्लायर सपोज S45 दिया है, ठीक है, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अप्रॉक्स इनके बीच में आ रहा है, देन ओके, मतलब तुमको जो मिला है वो ठीक ग्रेड का मिला है। इसीलिए भी हम लोग चेक करते हैं कि हमको बोला गया है 45 का, लेकिन हमको दे दिया कुछ दूसरा क्वालिटी का, तो वो भी चेक करना है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ओके। सो कुछ कुछ में तुम्हारा 80/100, 60/80 ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दैट मीन्स द पेनिट्रेशन वैल्यू रेंज विल बी लाइज बिटवीन 80 and 100, मतलब 80/100 मतलब मिनिमम है 80, मैक्सिमम है 100, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी पेनिट्रेशन वैल्यू अगर रहेगा तो वो ग्रेड हो जाएगा तुम्हारा 80/100, ओके। नाउ अब जो तुमको फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछे थे, ठीक है, सपोज 30/40 है, 30/40 है और 80/100 है। अब बोलो इन दोनों में से विच इज सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट सैंपल कौन सा सॉफ्ट है, विटामिन कौन सा सॉफ्ट है, 30/40 ना कि 80/100? 80/100। 80/100, 80/100। 80/100 मतलब 8 mm to 10 mm पेनिट्रेट होगा, मतलब वो ज्यादा Yes, ma'am. सॉफ्ट है, इसलिए ज्यादा कम उतना लोड में भी उतना ज्यादा दूर तक मतलब पेनिट्रेट हो पाया, राइट। अब बोलो कौन सा हम लोग कोल्ड वेदर कंडीशन में यूज कर सकते हैं, कौन सा मतलब सॉफ्ट वेदर सॉरी हॉट वेदर कंडीशन में यूज कर सकते हैं। सपोज 80/100 तुम लोग बोले थे दिस इज द सॉफ्ट बिटुमिन, Yes, ma'am. अब इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, Cold. Cold. कोल्ड Cold. में, अच्छा क्यों? Ma'am, this is soft vitamin. Soft है इसलिए, soft है देखो, इसलिए। तो बोले तो हाँ बोले जाबे। एग्जैक्टली देखो अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो हम लोग जाएंगे दैट इज ए सॉफ्टनिंग पॉइंट, दोनों इंटरकनेक्टेड है, ओके। पेनिट्रेशन वैल्यू जिसका ज्यादा है मतलब दैट इज सॉफ्ट बिटुमिन, मतलब उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट भी कम होगा। सॉफ्टनिंग पॉइंट कम होगा मतलब कि वो जल्दी टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में इट विल स्टार्ट टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। हमको वैसा भी नहीं चाहिए कि कम टेम्परेचर में वो पूरा फैल जाए, राइट। ऐसा भी नहीं चाहिए कि इट विल स्टार्ट टू मतलब फैलना स्टार्ट हो जाए, स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाए, राइट। सो वी शुड मेंटेन दैट, इसीलिए जिसका भी सॉफ्ट टाइप ऑफ विटामिन है वी विल यूज दोस विटामिन इन आवर कोल्ड वेदर कंडीशन, जैसे कि जम्मू कश्मीर यहाँ पे। और जो भी तुम्हारा हार्ड है उसको मतलब उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा रहेगा, तो उसको हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, हॉट वेदर में, ओके। सो लाइक दिस वी कैन क्लासिफाई द ग्रेड कि ये एस
कैसा है, S35 है, S45 है, S55 है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या इससे भी हो सकता है। सो आवर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंसिस्टेंसी चेक करना, और ये हार्ड है कि सॉफ्ट है ये चेक करना, और ग्रेड ऑफ बिटुमिन भी स्पेसिफाई कर देना। देखो पेनिट्रेशन वैल्यू के ऊपर ही तुम्हारा देखो ग्रेड ऑफ बिटुमिन डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा पेनिट्रेशन वैल्यू इतना आ रहा है मतलब वो कौन सा ग्रेड है, 65 ग्रेड है, होना चाहिए, लेकिन तुमको शायद 55 दे दिया, तो तब क्या हो जाएगा, तब मतलब हम लोग का जो मिला वो माल भूल है, हमको सही माल नहीं मिला इसका मतलब, ठीक है। सो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर पेनिट्रेशन का। हाँ मैम। यस मैम। अब जल्दी जल्दी हम लोग सॉफ्टनिंग में चलते हैं, ठीक है। सॉफ्टनिंग का ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, तो हम लोग को जल्दी हम छोड़ देंगे। ठीक, सॉफ्टनिंग पॉइंट। सॉफ्टनिंग पॉइंट देखो, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। ये है सॉफ्टनिंग पॉइंट। सॉफ्टनिंग पॉइंट मींस व्हाट, द टेम्परेचर। देखो दिस इज व्हाट ऑल दिस यार, जो भी फ्लैश एंड फायर पॉइंट, जो भी पॉइंट आएगा उसका मतलब है यू आर मेजरिंग टेम्परेचर। हमको यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करना है। पेनिट्रेशन में क्या मेजर करना था, पेनिट्रेशन कितना पेनिट्रेट हुआ वो मेजर करना था। अब सॉफ्टनिंग पॉइंट में क्या करना है कि टेम्परेचर मेजर करना है। कौन सा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच इट विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ओके, जो जल्दी जल्दी टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर में ही वो अपना स्टेट चेंज कर देगा, दैट मीन्स दैट इज सॉफ्टर बिटुमिन। और जो ज्यादा टेम्परेचर में जाके वो मतलब गलना स्टार्ट करेगा, दैट इज हार्डर बिटुमिन। ओके, ऐसे भी ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, जैसे हम बोले पेनिट्रेशन और ये वाला। ओके, सो मेन है हम लोग को टेम्परेचर मेजर करना है, विच इज सॉफ्टनिंग पॉइंट। ओके, अब क्या क्या एपरेटस है देखो, दिस इज एक्चुअली, यहाँ पे देखो रिंग दिखाई दे रहा है तुमको, बॉल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस नाम, इस एक्सपेरिमेंट का में जो भी हम लोग एपरेटस दैट वी आर यूजिंग इज नोन एज रिंग एंड बॉल एपरेटस। ओके, क्योंकि रिंग यूज कर रहे, बॉल यूज कर रहे, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग एंड बॉल एपरेटस, ठीक है। इन लोग का स्पेसिफिकेशन तुम लोग देख लेना है कि कौन सा क्या कितना एमएम ये सब है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट के ऊपर, और इसके साथ क्या क्या मिलता है। देखो ये है एक कंटेनर, सॉरी इस एपरेटस में ये आता है तुम्हारा बीकर चाहिए, अगेन वी आर मेजरिंग टेम्परेचर, सो थर्मामीटर चाहिए, ठीक है। अब इस वाले में देखो क्या क्या है, दिस इज योर रिंग, जहां पे हमको सैंपल रखना है, बिटुमिन का सैंपल जहां पे रखना है, रिंग, ठीक है। अब दिस इज द रिंग होल्डर या स्टील बॉल होल्डर, इसको बोलते हैं होल्डर। देखो ये वाला क्या है, ऐसा ऐसा करके एक डायमीटर फॉर्म कर रहा है, राइट। अंदर में भी एक इनर डाया फॉर्म कर रहा है, और ये वाला इनर डाया कितना होगा, ये बॉल का जितना डायमीटर है उतना होना चाहिए, जिससे कि ये बॉल इसके ऊपर अगर हम प्लेस करेंगे, देखो इधर जैसे है, इधर प्लेस करेंगे तो वो इधर उधर मतलब सेंटर में हो जाए, इसको बोलते हैं बॉल सेंटरिंग गाइड, ठीक है। मतलब बॉल शुड बी एट द सेंटर। देखो ये वाला साइड में है, राइट, इट्स नॉट इन द सेंटर। अगर ये वाला देंगे तो ये पूरा सेंटर में आ जाएगा। देखो ये नीचे है रिंग, यहाँ पे तुम्हारा सैंपल है, सैंपल के ऊपर है तुम्हारा ये बॉल गाइड, ठीक है, और बॉल गाइड के बीच में तुम्हारा सेंटर में क्या है, स्टील बॉल्स है। ओके, अब ये बॉल क्यों दे रहे हैं, जब मेनली हमको क्या करना है, स्लोली वी हैव टू राइज द टेम्परेचर, बिटुमिन का टेम्परेचर राइज करना है, सॉफ्ट करना है ना उसको। तो सॉफ्ट जैसे जैसे होगा तो इसका वेट की वजह से क्या होगा, इट विल स्टार्ट टू ड्रैग, ये बिलो ड्रैग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, करके वो यहाँ पे टच करेगा। तो हमको देखना है कि कब जाके ये बॉल अलोंग विद द बिटुमिन यहाँ पे टच करेगा, ठीक है, वो टेम्परेचर हमको मेजर करना है। अब दोनों एक साथ भी कर सकता है, जनरली नहीं करता है, ये पहले गिरा फिर इसके बाद ये टच किया, तो दोनों का एवरेज टेम्परेचर ले लेना है। सो मेन यही है कि हमको ये बॉल कब जाके यहाँ पे टच करेगा वो टेम्परेचर हमको देना है, टाइम नहीं, टेम्परेचर। ओके, अब आते इसके लिए बीकर क्यों है। अब बीकर में क्यों इसको तुम लोग टेम्परेचर कैसे दोगे, इसको कैसे हीट करोगे, सैंपल जो इसके अंदर सैंपल होगा वो कैसे हीट करोगे, तो कुछ कंडक्टिंग मटेरियल रहेगा, ठीक है, दैट इज योर वाटर। वाटर इज द कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब कि ये बीकर में पानी फुल करना है, पानी के अंदर ये पूरा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, फिर नीचे से हीट करना है, हीट करने से ये भी जो भी तुम्हारा सैंपल है वो भी हीट होना स्टार्ट करेगा, उससे क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट होने से बॉल के वेट की वजह से वो नीचे आना स्टार्ट करेगा। ओके, सो दिस इज द टोटल एपरेटस। ओके, देखो अब क्या क्या चाहिए, ये तो सेटअप हो गया, ये रिंग बॉल डाल के हम ऐसे सेटअप कर दिया,
ठीक है, थर्मामीटर भी डाल दिया। अब टेम्परेचर चाहिए, राइट, टेम्परेचर चाहिए इसको बढ़ाने के लिए, तो नीचे एक हीटर है। अब वो वाला टेम्परेचर इट शुड बी मेंटेन एट सर्टेन रेट, स्टैंडर्ड रेट, मतलब कितना रेट है 5 डिग्री पर मिनट। हम कैसे बढ़ाएंगे, एक मिनट में ये 5 डिग्री राइज होता जाएगा। पानी का टेम्परेचर इट विल इंक्रीज 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, ठीक है, दिस इज द रेगुलेटर। अब देखो ये वाला चीज क्या लग रहा है तुमको, तुम लोग देखे थे, व्हाट डू ये सब क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है, तुम लोग वीडियो तो देखे होंगे, व्हाट इज दिस? इससे क्या होता है, वीडियो देखे हो ना? हेलो, अच्छा तो रिप्लाई करो। হ্যাঁ ম্যাম ভিডিও দেখেছি। हाँ मैम, हाँ मैम। तो क्या था वो, ये चीज क्या था, ये इसका नाम था स्टरर। स्टरर मतलब कि स्टर करेगा, जब पानी यहाँ पे पानी रहेगा, ठीक है, ये जो है स्टरर ये रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा, राइट। घूम के वो सब टेम्परेचर पूरा फैला देगा एग्जैक्टली उसको सर्कुलेट करेगा, ठीक है, सो दैट आवर वाटर इट विल हीट यूनिफॉर्मली, उसको इसीलिए ये स्टरर दिया रहता है। वेरी गुड, ठीक है। अब प्रोसीड्यूर क्या है तुम्हारा, देखो सैंपल को गर्म करना है। सैंपल को गर्म करने के लिए कितना टेम्परेचर रखना है, इट शुड बी बिटवीन 75 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सैंपल को गर्म कर दिया, थोड़ली मिक्स कर दिया, अब उसको यहाँ पे डालना है हमको, ठीक है। अगर तुम कोई भी नीचे कुछ भी ऐसा कुछ एजेंट नहीं दोगे, कुछ प्रूफिंग एजेंट नहीं दोगे, तो क्या होगा, बिटुमिन यहाँ पे तुम डाल रहे हो लेकिन वो नीचे अटक जाएगा, चिपक जाएगा, राइट। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, वी शुड प्लेस सम मिक्सचर, नीचे कुछ एक ऐसा जेल टाइप का मिक्सचर देना है कि जिससे अगर तुम बिटुमिन डालोगे इसके ऊपर तो वो चिपक ना जाए, नीचे का सरफेस से चिपक ना जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं दिस इज अ मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रीन एंड ग्लिसरीन 1:1 रेशियो। ओके, मतलब डेक्स्ट्रीन एक पाउडर होता है, ग्लिसरीन एक ग्लिसरीन जो होता है वो इसको मिक्स करके एक जेल टाइप का होता है, उसके ऊपर हम ये रिंग प्लेस कर दे रहे, अब पानी डाल रहे, सॉरी बिटुमिन डाल रहे, तो उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखो यहाँ पे एक्सेस है ना, ये इसको काट देना है बाद में, ठीक है। अब कितना टाइम के लिए इसको रखना है, ऑन अगेन वी हैव टू व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हीटिंग एंड अगेन वी आर कूलिंग। कूल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी वांट इट इन नेचुरल कंडीशन, उसका जो रूम टेम्परेचर में है, ठीक है, उसमें रहना चाहिए। जनरली तुम लोग का रास्ते में जो बिटुमिन है क्या है, वो तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में ही रहता है ना, तो इसीलिए उसको भी यहाँ पे भी तुम्हारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में कूल कर देना है पहले, ठीक है। डायरेक्ट पानी के अंदर नहीं डालना है, पहले रूम में करना है फिर पानी में डालना है। अब पानी में डाल करने के बाद कितना मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, हम उसको लेकर हम लोग फिर पानी में डाल देंगे, वाटर बाथ में हम उसको डाल देंगे। देखो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद क्या करेंगे, उसको फिर से ठंडा होने देंगे हम लोग। अब तब तुम्हारा टेम्परेचर शुड बी मेंटेन एट कितना होना चाहिए, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वाले का स्टार्टिंग टेम्परेचर शुड बी 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये याद रखना है, ठीक है। जिस मतलब जनरली ये किस टाइप का मतलब जिसका सॉफ्टनिंग पॉइंट, अगर रुको देखते हैं कितना था, हाँ, जिसका सैंपल का सॉफ्टनिंग पॉइंट इज बिलो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखो। मतलब कि जो जितना भी सैंपल आता है जिसका टेम्परेचर सॉफ्टनिंग पॉइंट टेम्परेचर इज बिलो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके लिए कंडक्टिंग डिवाइस कौन सा है, कंडक्टिंग मटेरियल क्या है, वाटर है, डिस्टिल वाटर। ओके, और जिसका ज्यादा है सॉफ्टनिंग पॉइंट मतलब अबव 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तब हमको क्या करना है, ये वाटर को हटाकर यहाँ पे ग्लिसरीन डाल देना है। ओके, मतलब ग्लिसरीन में हम लोग हीट करेंगे अब, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ये पानी में डाल दिया, इसको फिर हम लोग 15 मिनट्स के लिए रख देंगे ऐसे ही कूल करने के लिए, ठीक है। और तब स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इट शुड बी एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस डाटा, ओके, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं टेम्परेचर शुड बी 5 डिग्री सेंटीग्रेड। किसके लिए, इफ द सॉफ्टनिंग पॉइंट इज लेस देन 80 डिग्री, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट इज लेस देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तब हम लोग वाटर यूज करेंगे और स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना होगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखो ये जो वाटर सरफेस और ये इसका बिटुमिन का टॉप सरफेस, इन दोनों के बीच में कुछ गैप है ना, तो दैट गैप शुड बी 50 mm, मतलब कि 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए,
ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाटर सरफेस, इसका जो भी टॉप सरफेस से वाटर सरफेस का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। देखो ये वाला ऐसे एडजस्ट करके रख के यहाँ पे प्लेस कर देना है। ओके, अब करेंगे क्या, इसको हम लोग, अब इसको हम लोग हीट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डालेंगे कहाँ पे, ऐसा करके इसमें डाल दिया। नाउ वी विल स्टार्ट टू हीट। इसका स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना था, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पर मिनट में 5 डिग्री करके ये बढ़ेगा। अब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्या होगा, दैट बिटुमिन विल स्टार्ट टू बिकम सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट होने की वजह से क्या होगा, ये बॉल अब धीरे धीरे अलोंग विद द बिटुमिन नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, ये जो मैडम, गैप है, हाँ बोलो। गल जाएगा लास्ट में। हाँ, ये जो गैप है, देखो ये गैप इट शुड बी मेंटेन्ड। ओके, ये मेंटेन करना है, इट शुड बी 2.5 सेंटीमीटर मेंटेन करना है ये गैप। ओके, और बीच में थर्मामीटर रख रहे हैं ऐसे। अब देखो करते जाने से क्या हो जाएगा, स्लोली इट विल स्टार्ट टू, देखो ये बिटुमिन के साथ नीचे बहना स्टार्ट हुआ। टेम्परेचर यहाँ पे था, अब जैसे जैसे राइज हो रहा टेम्परेचर, इट इज ऐसे ये फ्लो होना स्टार्ट करेगा। जैसे अब जब ये टच करेगा तब टेम्परेचर कितना था उसको लेना है, सेकेंड वाला जब टच करेगा तो उसको टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर रीडिंग लेना है। दोनों को फिर क्या करना है, एवरेज कर देना है। सो दैट वैल्यू विल बी योर सॉफ्टनिंग पॉइंट। ओके, तो नाउ दीज आर द रिकमेंडेड वैल्यू कि कितना होना चाहिए सॉफ्टनिंग पॉइंट। सो VG10 है, ये विस्कोसिटी ग्रेडियंट है। ओके, VG10 टाइप ऑफ ग्रेड के लिए होना चाहिए सॉफ्टनिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 के लिए 45, ऐसा। ठीक है, अब बोलो जो सॉफ्ट बिटुमिन है उसका पेनिट्रेशन वैल्यू क्या होगा, हाई होगा ना लो होगा, जिसका सॉफ्टनिंग पॉइंट इज लेस। लो होगा। हाई। हाई 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 होगा। अब उसको हम हाई। लोग कहाँ पे देंगे, इसीलिए हम मतलब हाई पेनिट्रेशन वैल्यू जिसका है उसको हम लोग कहाँ पे दे रहे थे, कोल्ड वेदर में दे रहे थे, राइट। कोल, हाँ। क्योंकि उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट बहुत कम था, मतलब कि ठंडा जगह में उतना ज्यादा हीट नहीं होगा जिससे कि वो जल्दी जल्दी नहीं गलेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको वैसा कंडीशन में दे सकते हैं। लेकिन अगर वही टाइप का बिटुमिन तुम अगर जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी इलाका है वहां पे दोगे तो क्या होगा, वो कम टेम्परेचर में ही वो गलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि वहां पे सपोज उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट है सपोज 40, अब तुम लोग सॉरी 20 है, सपोज सॉफ्टनिंग पॉइंट है 20। ठीक है, अब तुम उसको देकर दे रहे हो ऐसे जगह पे जहाँ पे ऑन एवरेज टेम्परेचर विल बी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, रास्ता पूरा गलना स्टार्ट कर देगा, राइट। सो इट इज नॉट सुटेबल। इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यूज ऑल्सो हम लोग मतलब क्या बोलते कंक्लूड कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस रीजन में ये सब विटामिन दिया जा सकता है। एक है कि ये वाला उसका सुटेबिलिटी एज पर द लोकेशन वो डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, और दूसरा है कि तुमको को जो ग्रेड मिला है वो सही मिला है कि नहीं, ठीक है, वो भी चेक करने के लिए। सो उसी को बोलते हैं क्वालिटी चेन एश्योरेंस। ओके, सो यही है तुम्हारा सॉफ्टनिंग पॉइंट और विटामिन क्या बोलते हैं पेनिट्रेशन वैल्यू टेस्ट ऑफ विटामिन। ओके, एकदम 50 मिनट्स आई थिंक शायद क्लियर होगा। यस मैम। अगर नहीं है तो ये वीडियो हम दे देंगे, तुम लोग एकदम देख ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सुनो, तुम लोग वहां पे जाके अपना अटेंडेंस दे देना। हाँ मैम, हाँ मैम, दे दिया अटेंडेंस। हाँ हाँ मैम, गूगल क्लासरूम में। हाँ 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 हाँ